Student, this is my blog. So you see, I will be updating this blog. Announcements are there, online teaching related material is there. Okay, see, this playlist of my videos is there. Those who are participating in NEST, यहाँ पे आप देखिए videos हैं उनके लिए सारे, बहुत सारे links हैं यहाँ पर, and अदर वीडियोस भी हैं, साइंटिस्ट की बायोग्राफीज हैं. मैं इस ब्लॉग पर अपडेट करता रहूंगा, आप विजिट करते रहिए. ये ब्लॉग का एड्रेस है, तो इस पे अब मैं आने वाले समय में बहुत कुछ अपलोड और करूंगा. बहुत से इंफॉर्मेशन कैरियर की और सब इस पे आप विजिट कीजिएगा. सो आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलेगी. यहाँ से सिलेबस भी हमने अभी अपलोड किया, तो एक बार जस्ट जल्दी से रिकैप करते हैं. ये दिस इज न्यू सिलेबस, ये नया सिलेबस है. और यहाँ से जो है प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है वो हम डिस्कस कर रहे थे. ये है स्कीम, अब बदल गई है, ये नई स्कीम है. जस्ट आपने टोटल 8 प्रैक्टिकल्स लिखने साल में, 4 फ्रॉम सेक्शन 1, 4 फ्रॉम सेक्शन 2, एंड उसको चेक कराना है. और आपकी ये कॉपी 7 मार्क्स की है. देवांश, आपको आ रहा है वॉइस मेरा? देवांश, आप अनम्यूटेड हो, कोई वॉइस नहीं आएगा तो आपने बताना है, ठीक है? Yes, sir. Okay, so this is the first experiment to determine resistivity of 2-3 wires by plotting a graph for potential difference versus current. So resistivity का जो फार्मूला होता है वो आपको मालूम होगा. रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L by capital A. To calculate the resistivity, we have to calculate resistance, length, and cross-sectional area of wire. 3 things. Rho is equal to RA by L. Okay. So to determine resistivity of 2-3 wires by plotting a graph for potential difference versus current. So formula is rho is equal to R capital A by small l. Small l will be length of the wire, capital A cross-sectional area. Cross-sectional area is pi r square. So we have to calculate the resistance, length, and radius of the wire. To calculate the radius, we need screw gauge, and to calculate the resistance, we will perform experiment. Length of wire can be calculated from scale, meter scale. So now I share video which I have created for you. Audio Jungle. वॉइस आ रहा है गौतम? Audio Jungle. स्क्रीन का वॉइस आ रहा है? Yes, sir. स्क्रीन पे जो साउंड है वो आ रहा है आपको? Yes, sir. Audio Jungle. हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, मैं जानता हूँ आप सेफ हैं और टीचिंग को पूरा एंजॉय कर रहे हैं. टुडे आई हैव कम अप विद एन आइडिया टू परफॉर्म द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लस टू फिजिक्स. सो आई होप यू आर एक्साइटेड and I am also excited to record this video for you. So let us start, move to the apparatus and equipments required for performing this experiment, and let us perform the experiment. Come on, आइए. So स्क्रीन पर जो वॉइस है वो आ रहा है ना सारा आपको, गौतम? Yes, sir. आ रही है. वॉइस आ रहा है ना, ठीक है. So let us understand the apparatus. This is voltmeter. You can see range of this voltmeter is 3 volt, marked from 0 to 3,
and this is an ammeter, measures the current. Its range is 3 ampere. Its range is 3 volt. You can see red and black screws. This red is positive and black is negative. Same is here, positive and negative. So while connecting in the circuit, we will take care of these terminals, positive and negative. And this is DC moving coil. It works on the DC. This is also DC moving coil, voltmeter. Now next, unknown resistance wire. Students, see, this wire is unknown resistance wire, and length of this wire is 1 meter. I have measured this length on a meter scale. Next material required is rheostat. I think you all know rheostat is variable resistance. Let us see this apparatus. This apparatus is called rheostat. You can see this is written. This works on 2 ampere and its resistance is 50 ohms. So this is variable resistance. We can use this by sliding this knob. We can vary resistances. Now you can see there are 3 knobs for connection. We use any one knob of these 2 knobs to make connection, and this knob. So this knob is compulsory to use, and you can use either this one or this one for making connection. You can't connect both the wires to these 2 knobs. One wire either to this knob or this knob, and one wire to this knob. So students, next is plug key. See, this is plug key. We can remove this plug. When we remove this plug, connection is detached, disconnected, or you can say we stop the flow of current. These 2 knobs are connecting knobs. These have screw, you can see, opening screw, then inserting wire, and then again tightening this screw. Same is here in voltmeter also screw. Knobs are for connecting the wires. This is plug key. Now let us come to next, battery. Battery is a combination of 2 cells. Sometime you will see in lab this type of arrangement. 2 cells. This is battery box, and connections are taken out. You see, this is positive, this is negative. So this terminal is positive and this is negative. And we can close it. So this is battery box. Generally you see this is a high power battery. We don't use this because this has very high voltage. And another type of simple arrangement is arrangement of 2 cells. This is also battery. Soldering iron is done and connections are taken out. Okay, so spring side is negative and this top button side of the cell is positive. So this terminal is positive and this terminal is negative, where spring connects the cell. Another type of cell is, this is cell. Okay, this is cell. This is rechargeable cell, secondary. This also has 2 terminals. You can see this positive terminal, this is negative terminal. There is knob. We open the knob, inside the wire, and again tight the knob. This is cell. We use another type of arrangement to provide the EMF is battery eliminator. See, this battery eliminator has range of 0 to 12 volt. This is the knob, we can vary the voltage. Now at present this is 0, now 2, 4,
Normally we perform practical within 4 volt. We don't apply much voltage because high current will increase the resistance of wire. This is the on off switch. This is the on off switch. This is fuse. Okay. So this is another type of arrangement to provide the power supply, EMF required to conduct the experiments. And last but not least, connecting wires. You see, these are connecting wires. Connecting wires. Copper wires. We remove this thread and connect by removing the thread. Don't connect it with thread. Slide a little bit and then connect. So these are connecting wires. So these all are apparatus and description. Now let us understand how to perform the experiment. See, this is the observation table. Serial number of reading, ammeter reading, voltmeter reading, and then calculation V over R, then mean, then length of wire and resistance per unit length we will calculate later on. To conduct the experiment, we have to make connections according to this circuit diagram. Now you see in this circuit diagram. In this circuit diagram, you can see an ammeter, battery, cell or source of EMF, one plug key K. This is rheostat. This is our unknown resistance wire, this R. This is voltmeter, and flow of current is from positive terminal to the negative terminal of the battery through this rheostat. So we can use rheostat to change the amount of current. So when we change the current according to Ohm's law, potential drop across the unknown resistance wire also changes, we measure through voltmeter. So now we have to make this circuit. This circuit is very easy. All components are in series. See, in a series. Only voltmeter is parallel to the unknown resistance wire. You know, voltmeter is connected parallel to the resistance because voltmeter has very high resistance. Ammeter is connected in series. So all components are in series except voltmeter. Now we will use these connecting wires to connect all these components to perform the experiment. We will use any one source of EMF from these sources. Okay. After taking the observations, so I hope all of you are now ready. Let us start the experiment. Audio Jungle. Audio Jungle. So students, I hope you enjoyed this video. आप अपने को जिसने बात करना है वो अनम्यूट कर सकता है। आ रहा है वॉइस? यस सर। यस सर। हाँ, सो कैसा लगा आपको ये इंट्रोडक्टरी लेसन? समझ आ गया सर, बहुत अच्छा था सर, बहुत अच्छा था। यस सर। ठीक है सर, सारा समझ आ गया। सो इसमें हमने जो करना है वो यही है कि आगे अब आप एक प्रैक्टिकल नोटबुक ले लीजिए और उसमें ये सारा एक्सपेरिमेंट आपने लिखना है। ओके, लिख कर रखना है। नेक्स्ट वीडियो जब मैं रेडी करूंगा उसमें मैं रीडिंग्स लेना सिखाऊंगा।
इसमें थोड़ा सा करेक्शन है वीडियो में जो मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ आपको, थोड़ा सा यहाँ पीछे चल के, यहाँ जो है वीडियो में Connecting this circuit diagram, this is voltmeter. We remove this thread from the experiment. See, this is the, हाँ यहाँ पे थोड़ा देखिए, ये जो मैंने बता दिया है ना, यहाँ पे देख रहे हो आप? हेलो, Yes, sir. सबको वॉइस आ रहा है ना? यस सर। हाँ, ये अब आप देखिए ऑब्जर्वेशन टेबल है हमारा, हम रीडिंग लेते जाएंगे, अमीटर की रीडिंग नोट करेंगे, वोल्ट मीटर की, और रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। रेजिस्टेंस इज V बाय I है। सो यहाँ से रेजिस्टेंस जब हम कैलकुलेट कर लेंगे, मीन वैल्यू आ जाएगी रेजिस्टेंस की, यहाँ फिल कर देंगे, लेंथ ऑफ द वायर स्केल से ले लेंगे। यहाँ मैंने ये लिख दिया है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, बट अब हमारा एम रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ नहीं है। पिछले सालों में ये रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ होता था, बट अब जो एम है हमारा थोड़ा सा स्लाइटली चेंज हो गया है। वो क्या है? टू डिटरमाइन रेजिस्टिविटी। ओके, अर्लियर दिस वाज टू फाइंड द resistance per unit length. Okay, now this has changed so little bit, but for that also उसके लिए भी हमें क्या करना है? रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आपको अभी मैंने बताया, क्या बनेगा? RA by L, RA by L बनेगा। एरिया निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर वायर का हमें एरिया निकालने के रेडियस निकालना पड़ेगा। तो जो apparatus रिक्वायर्ड आप लिखेंगे उसमें एक और ऐड कर लें। अगर न्यू वर्जन मिल रहा है आपको, प्रैक्टिकल का न्यू एडिशन मिल रहा है तो अच्छी बात है। अगर पुराने एडिशन की बुक मिल रही है उसमें ये एक्सपेरिमेंट नहीं मिलेगा आपको। ओके, उसमें मिलेगा रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर। सो आप वहां थोड़ा चेंज कर लेंगे, ये एम लिख देंगे। एपरेटस रिक्वायर्ड में आपने क्या लिख देना है? एक स्क्रू गेज ऐड कर देना है। ओके, स्क्रू गेज और स्केल ऐड कर देना है। एंड जो फॉर्मूला है वो आपने रेजिस्टिविटी का ओम्स लॉ भी लिख देना है और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला भी लिख देना है। रेजिस्टिविटी क्या बनेगी? R रो इज इक्वल टू R पाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाय L। ये फॉर्मूला बन जाएगा रेजिस्टिविटी का। और अगर डायमीटर लेकर करते हैं तो एक और फॉर्मूला भी बन सकता है, जो भी ठीक लगे आप करेंगे। और इसमें एक ऑब्जर्वेशन टेबल और बनेगा टू फाइंड द रेडियस ऑफ द गिवन वायर यूजिंग स्क्रू गेज। वो आपके पास टेबल पुरानी आपकी प्रैक्टिकल कॉपीज में आपको मिल जाएगा, अदरवाइज मैं तो ये आप लिख के रेडी रखिए। और आपको मेरी पूरी स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर। फुल स्क्रीन दिख रहा है ना? Yes, sir. यस सर। अच्छा, कुछ बच्चे लेट आ रहे हैं क्या? आप देखिए, ये आपकी प्रैक्टिकल कॉपी में आपको दिखा रहा हूँ। दिख रहा है आपको कैसे लिखना है आपने? ये आपका फर्स्ट रूल्ड पेज है जिसपे लाइनिंग है और उसके सामने आपका ब्लैंक पेज है। आप ने जो रूल्ड पेज है, ये वाला पेज आपको +1 में सारा मालूम ही है ना कि एम लिखना है, ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड, थ्योरी, ऐसे यहाँ लिखते चले जाना है। और जो राइट साइड है आपका, इस तरफ वाला जो पोर्शन है, ये वाला है ना, राइट साइड वाला, सॉरी, ये वाला पोर्शन जो है, इसमें आपने क्या लिखना है? एम लिखना है और फिर डायग्राम बनाना है। देन आपने ऑब्जर्वेशंस लिखनी। ऑब्जर्वेशंस क्या है? ये है ऑब्जर्वेशन। देखिए, रेंज ऑफ अमीटर आपको दिखाया था मैंने वीडियो में। रेंज ऑफ अमीटर स्टार्टिंग में देखिए, ये रेंज ऑफ अमीटर कितना है? 3 है, 0 to 3 है। रेंज ऑफ वोल्ट मीटर भी दिखाया था, रेंज ऑफ अमीटर हो गया। एंड वोल्ट मीटर का रेंज भी सेम ही है, सेम ही उसका भी है, वो भी कहो आ जाए भी यहीं कहीं। ये मीटर है, ये देखिए वोल्ट मीटर भी 3 है, स्केल दोनों का बिल्कुल सेम है। ये अभी जब हम परफॉर्म करेंगे कल एक्सपेरिमेंट, उस समय हम देखेंगे। ये रेंज है, डिविजन्स कितने हैं देखिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60। 3 वोल्ट पे 360 डिविजन्स हैं। हमने इस तरह से जो ये है, इसको आगे देखिए जो आ रहा है, ये ऑब्जर्वेशन टेबल,
इसमें ये सारा हम ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, है ना। ऑब्जर्वेशन टेबल जब आ रहा है यहाँ पर, ये इसमें आप देखेंगे शुरू में, हम थोड़ा सा और पीछे करते हैं, ऑब्जर्वेशन टेबल पूरा अभी थोड़ी देर पहले था, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कोई बच्चा लेट तो नहीं आया? दोबारा प्ले कर दूं क्या ये? कोई चाहता है दोबारा प्ले करना? हेलो। नो सर। अच्छा, नहीं सर। सारे टाइम पे आ गए थे ना? No. हैं? Yes, sir. After taking ये जो है ऑब्जर्वेशंस है ना, रेंज ऑफ अमीटर, रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, ये सब हम अभी आपको इंट्रोड्यूस किया है। जब एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा तो ये सारे आपको समझ में आ जाएंगे। सो आज के लिए यही डिस्कशन था कि हमने इंट्रोडक्शन किया, सिलेबस देखा प्रैक्टिकल का, एंड उसके कंपोनेंट्स जो हैं एक्सपेरिमेंट, सर। ठीक है। सो अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो बोल सकता है। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। सर जो रियोस्टेट है उसका एक ही नॉब यूज करने के पीछे क्या रीजन है? हाँ अभी दिखाते हैं। रियोस्टेट यहाँ कहीं आया होगा, रियोस्टेट ये है ना? यस सर। आइए, ये यहाँ से शुरू हो रहा है रियोस्टेट, ठीक है। सुनिए, by sliding this knob. अब आप देखिए ये जो रियोस्टेट है, ये एक नॉब ये दिख रही है आपको, एक नॉब ये दिख रही है, दो नॉब दिख रही है आपको, ठीक है। यस सर। हाँ रिप्लाई करना है। इसमें ये जो ब्लैक दिख रहा है, ये ब्लैक नहीं है, ये वायर है। ओके, वायर के जो है कॉइल है ना, कॉइल से बनाया हुआ है ये देखिए। और इस कॉइल के ऊपर पॉलिश है, ये एक दूसरे से जुड़ती नहीं है जब लपेटते हैं। तो ये जो वायर है इसका कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ना, ठीक है। वो रेजिस्टेंस किस किस के बीच में है? इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में है ना रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर हम ये दोनों ही जोड़ देंगे तो रेजिस्टेंस वेरी कैसे करेगा बताइए? वो तो इसका मतलब आपने पूरा रेजिस्टेंस लगा दिया। हाँ आपने पूरा ही लगा दिया, इसकी जरूरत ही नहीं रही चलाने वाले की, है ना। अब आगे, अब एक अगर यहाँ जोड़ देंगे, मान लीजिए एक यहाँ जोड़ देंगे, करंट ऐसे चलेगा, करंट इस वायर में से चलेगा, फिर इसमें आएगा, रॉड में आएगा, और रॉड से आगे जाएगा, है ना। ये देखिए, ठीक है सर। समझे आप पॉइंट को? यस सर। अगर एक बार यहाँ लगा देंगे तो क्या होगा? करंट ऐसे जाएगा, करंट को पाथ चाहिए ना, पाथ क्या दे रहे हैं हम? ये वायर दे रहे हैं, इस वायर में से पास हो रहा है, फिर बीच में ये जो नॉब है इस रॉड से कनेक्टेड है, तो करंट इस रॉड में आ जाएगा। रॉड के बाद कहाँ जाएगा? रॉड के बाद कहाँ जाएगा? यहां से निकलेगा करंट, निकल के कहाँ जाएगा? जो सिंगल नॉब आपको दिखा रहे हैं, है ना, जो सिंगल नॉब दिखा रहे हैं। तो मैं ये पूरा फिर से प्ले करता हूँ रियोस्टेट, है ना, पूरा रियोस्टेट फिर से प्ले करता हूँ। अगर Let us see this apparatus. ना सी This apparatus. आ गया, ये 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंट के बीच पूरा 50 ओम है, बट हमें तो रेजिस्टेंस वेरिएशन चाहिए। वेरिएशन तभी होगी जब एक नॉब यहाँ लगाएंगे और एक इस पे लगाएंगे, और जब इस नॉब को चलाएंगे तो वायर की अलग अलग लेंथ इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में आएगी, जो सिंगल टर्मिनल है और ये टर्मिनल, चाहे यहाँ लगा दीजिए, कहीं भी लगा दीजिए, आप एक जगह लगाना है, ठीक है। देखिए अब इसका This is called rheostat. You can see this is written. This works on 2 ampere and its resistance is 50 ohm. 2 एम्पियर का मीन्स इसमें अगर 2 एम्पियर से ज्यादा करंट देंगे तो ये वायर बर्न हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सो इसकी रेंज है, दिस वर्क्स ऑन द 2 एम्पियर। So this is variable resistance. We can use this by sliding this. अब जब इसको स्लाइड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? इस टर्मिनल और बाहर वाले, मान लो एक वायर आपने यहाँ लगा दी और एक ऊपर लगा दी, तो इसके और बाहर वाले के बीच में जो वायर की लेंथ आ रही वो चेंज हो रही है। वायर की लेंथ चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है।
सो रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है, सिंपल. We can vary resistances. Now you can see there are 3 knobs for connection. We use any one knob of these 2 knob to make connection and this knob. So this knob is compulsory to use and you can use either this one or this one. सो स्टूडेंट टाइम इसका हो रहा है, और पूछना आपने कुछ? सर फिर रियोस्टेट बस वायर की लेंथ चेंज करके रेजिस्टेंस चेंज करता है. हाँ, लेंथ वेरी कर रहा है ना, ये बहुत बड़ी लेंथ है, बारीक बारीक वायर है, बहुत बहुत थिन वायर है. Yes, थिन sir. वायर का तो वैसे ही रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, और उसको इसमें कॉइल बनाकर ये बना दिया गया है. अदरवाइज अगर इस लेंथ को खोल के हम खींचेंगे तो हमारे स्कूल से वहाँ 7 सेक्टर पहुंच जाएगी. ठीक है, बहुत बड़ी लेंथ है, बट उसको Okay. थोड़े से लेंथ में सर्कल करके उसको कॉइल बनाकर यहाँ पे फिक्स किया हुआ. और बताइए, और क्या किसी की क्वेरी है? कोई है कोई क्वेरी? चलो, कोई एक बच्चा फाइनल कमेंट करेगा आज के सेशन पे. कौन करेगा जल्दी से 2 मिनट में? सर मैं हाँ, कर दीजिए. सर थैंक यू सो मच सर. हम लोग यही मतलब बहुत डर था कि प्रैक्टिकल्स कैसे होंगे, लेकिन आपने हमें काफी अच्छा व्यू दे दिया. घर बैठे बैठे ही सर सब समझा दिया. उसके लिए सर आपकी इतनी मतलब आपने इतनी मेहनत करी, वो भी हमारे लिए. थैंक यू सर सो मच. नहीं, थैंक यू आपके लिए. मैं नहीं तो स्कूल गया, मैं क्या करके लाता हूँ. मुझे एक्चुअल में मैं एंजॉय करता हूँ खुद क्रिएट करके. दूसरे वीडियो चाहे जितने भी अच्छे हों, वो एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाता जैसे यहाँ मैं दे रहा हूँ, है ना, वो नहीं हो पाता, है ना. सो चलिए, अब आपका जी सर. आपके लिए होमवर्क हो गया, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड तैयार रखना. सो जब रिकॉर्ड तैयार होगा 2 दिन बाद मैं ये एक्सपेरिमेंट करवाऊंगा आपको, ठीक है. सो ओके, ऑल द बेस्ट सर स्टूडेंट. सर बहुत अच्छा Thank हो you, गया. sir. सर ओके ओके, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट. Thank you, sir. Good night, sir. गुड नाइट. Thank you, sir. ओके, टेक केयर. Thank you, sir. हाँ, थैंक यू सर. बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक.